61, procedure for impeachment of the president. When a president is to be impeached for violation of the constitution, the charges shall be preferred by either house of parliament. What is the ground of introducing the impeachment against the president? For violation of the constitution, and that charge of the violation of constitution be preferred before the which house? Either house of parliament, either before the house of people or council of state. No such charge shall be preferred unless the proposal to prefer the such charge is contained in a resolution which has been moved after at least 14 days notice. After at least 14 days notice in writing, signed by not less than the 1/4 of the total number of the members of the house has been given of their intention to move the resolution, and such resolution has been passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the house. Two things required for preferring the charge against the president for violation of the constitution. In the form of resolution, the charge is contained against the president, and the 14 days notice in writing must be given to the president before the introducing that resolution before either house of parliament, and the signature upon that proposal of at least the 1/4 of the member of the concerned house, and such resolution has been passed by the majority of the not less than 2/3 of the total membership, not a 2/3 of the present and voting, 2/3 of the total membership of the concerned house. By this majority, if resolution has been passed by the either house of parliament, then it forwarded to the another house. When a charge has been so preferred by either house of parliament, the other house shall investigate the charge or cause the charge to be investigated by any agency, etc., and the president shall have the right to appear and to be represented as such investigation. When once a resolution for impeachment has been passed by the one house and forwarded to the another house, when the another house that resolution is pending before the another house has right to investigate or cause to be investigated by the any agency, etc., and in another house the president has right to appear and represent himself by the advocate, etc., as per the clause 3rd of article 61 of the constitution. Clause 4, if as a result of investigation, as a resolution is passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the house by which the charge was investigated or caused to be investigated under clause 3rd of the article 61, declaring that the charge preferred against the president has been sustained. If another house declared that the charge preferred against the president has been sustained, such resolution shall have the effect of removing the president from his office as from the date on which the resolution is so passed under the clause 4th of the article 64. अनुच्छेद 61 देखेंगे आप, मेन एग्जाम में भी आ सकता है, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। क्लॉज फर्स्ट देखेंगे आप, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तब संसद का कोई भी सदन जो है वो संविधान के अतिक्रमण का आरोप राष्ट्रपति के विरुद्ध है वो लगा सकता है। जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर सदन लगाए, लोकसभा भी लगा सकती है और राज्यसभा भी है वो लगा सकती है। किसी भी सदन में ये आरोप संविधान के अतिक्रमण का महाभियोग के एबो पर्पज के लिए लगाया जा सकता है। ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि इस क्लॉज 2 की प्रक्रिया जो है वो उसकी पालना नहीं होती। ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना या प्रस्ताव जो है ऐसे किसी संकल्प के रूप में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के बाद प्रस्तावित किया गया है और जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया। आरोप लगाने का प्रस्ताव या प्रस्तावना जो है एक संकल्प के रूप में होगी। कैसा होगा? रिजोल्यूशन के फॉर्म में होगा और उस संकल्प के फॉर्म में जो प्रस्तावना लाई जा रही है, आरोप लगाने की जो है या प्रस्ताव किया जा रहा है वो कंसर्न हाउस के समक्ष है, वो उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। मान लो किसी सदन में संख्या टोटल 400 है
तो 1/4 का मतलब एटलीस्ट 100 मेंबर्स जो है वो सिग्नेचर करेंगे कंसर्न है वो रेजोल्यूशन पे, तब वो वैलिड रेजोल्यूशन है वो माना जाएगा। आज यदि वो रेजोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है तो पहले नोटिस दिया जाएगा 14 दिन का राष्ट्रपति को, और आज से 14 दिन की समाप्ति के बाद वो रेजोल्यूशन कंसर्न हाउस में इंट्रोड्यूस होगा। ऐसा नहीं कि आपने आज तैयार किया आज का आज पेश, नहीं, पहले नोटिस दिया जाएगा, सूचना दी जाएगी लिखित में राष्ट्रपति को कि हम आपके विरुद्ध जो है वो महाभियोग है वो ला रहे हैं, और उस सूचना देने से 14 दिन की समाप्ति को उसके बाद सदन में पेश किया जाएगा उसको, और उस पर जो है उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि वो लेस देन 1/4 मेंबर के सिग्नेचर है तो वो वैलिड रेजोल्यूशन नहीं माना जाएगा। वैलिड रेजोल्यूशन के लिए एटलीस्ट 1/4 मेंबर के सिग्नेचर रिक्वायर्ड, और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा ऐसा संकल्प पारित है वो होना आवश्यक है। रेजोल्यूशन कब पास माना जाएगा? संबंधित सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 जो है वो बहुमत उनके फेवर में, 2/3 सदस्य फेवर में है उस रेजोल्यूशन के, तभी वो पारित माना जाएगा। यदि इस मेजोरिटी से कम मेजोरिटी है तो वो जो है वो रेजोल्यूशन क्या होगा, लैप्स हो जाएगा, व्यपगत है वो हो जाएगा। जनरली आपने 2/3 बहुमत आगे आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तो वो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का होता है, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 होता है। ये एक यूनिक मेजोरिटी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की जो है वो 2/3 मेजोरिटी है वो रिक्वायर्ड है। क्लॉज 3, जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है संविधान के अतिक्रमण का, जैसा क्लॉज 2 में आपने पढ़ा, उस मैनर को फॉलो करते हुए, तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण स्वयं करेगा या अन्वेषण कराएगा किसी एजेंसी से, सीबीआई से, ईडी से, रॉ से, एनआईए से या अन्य किसी एजेंसी से करवाया जा सकता है। और ऐसे अन्वेषण में कोई कमेटी भी हो सकती है, उसमें ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का और अपना प्रतिनिधित्व कराने का जो है राष्ट्रपति का अधिकार है। जिस सदन के समक्ष महाभियोग का संकल्प पेश किया गया वहां राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है, न हाजिर होने का अधिकार है, न रिप्रेजेंटेशन का प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार है। उसका राइट जो है सेकंड हाउस में, लोकसभा में ऐसे आरोप लगे थे तब राज्यसभा में भेजा जाएगा तब होगा, और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था ऐसा, तो जब लोकसभा में जाएगा सेकंड हाउस में तब राष्ट्रपति हाजिर भी हो सकता है और अपना पक्ष भी रख सकता है, अपना प्रतिनिधित्व अपने किसी एडवोकेट आदि के माध्यम से भी वो अपना रिप्रेजेंटेशन है वो रख सकता है। क्लॉज 4, यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप क्या है, सस्टेन करता है, सिद्ध हो गया है कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है, वायलेशन किया कॉन्स्टिट्यूशन का, यह प्रूव हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा वो रेजोल्यूशन या संकल्प पारित कर दिया जाता है इस घोषणा के साथ। तो ऐसे संकल्प का प्रभाव क्या होगा, इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से ही राष्ट्रपति को उसके पद से क्या होगा, हटना होगा। राष्ट्रपति का पद उसी तारीख से जो है वो रिक्त हो जाएगा जिस दिन सेकंड हाउस में इस मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन जो है वो पारित हुआ है। ये इसी का जो हमने 4 क्लॉजेज पढ़े हैं इसी का इंटरप्रिटेशन है। ये बात जरूर आप देख लेना जो कहीं लिखी हुई नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर्स शैल आल्सो पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, बट इम्पीचमेंट में इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी जो बात है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टोरल कॉलेज में तो उनके इलेक्टेड मेंबर्स इंक्लूड रहते हैं, बट इम्पीचमेंट में उसका कोई पार्टिसिपेशन है वो नहीं है। इम्पीचमेंट की पावर टोटली पार्लियामेंट में ही वेस्टेड है, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, अदर हाउस में फॉरवर्ड किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं है। संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद का कोई भी सदन ये वो 14 दिन की सूचना, 2/3 बहुमत, दूसरा सदन अन्वेषण करेगा या करवाएगा, फिर ये सब बातें हमने पढ़ ली है पैरेक्ट में। ये बात जो है ये वो इंटरप्रिटेशन का पार्ट है। राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के नामांकित या मनोनीत जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो भी भाग लेते हैं इम्पीचमेंट में,
बट इलेक्शन के अंदर ओनली इलेक्टेड मेंबर है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और राज्य की विधानसभाएं जो है राष्ट्रपति के चुनाव में तो निर्वाचक मंडल का भाग है आर्टिकल 54 के अनुसार, बट महाभियोग की कार्रवाई में वो भाग नहीं लेती है। महाभियोग की कार्रवाई करने का अधिकार केवल संसद को ही है, वो दिया गया आर्टिकल 61। आर्टिकल 72 इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट द पार्डन एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। It is a judicial power of the president. The president is the executive head of Union of India. Executive head of the Union of India. Though judicial power has been conferred to the president under Article 72 of the Constitution. Also, legislative power has been conferred to the president under Article 123 of the Constitution. To promulgate the ordinance by the president is the legislative power of president. The president shall have the power to grant the pardons, reprieves, respite or remission of the punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence in respect of these three matters. In all cases where the punishment or sentence is given by a court martial under the Army Act, Navy Act, Air Force Act, etc. In all cases where the punishment or sentence is for an offence against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends, and in all cases where the sentence is the sentence of death. In respect of these three matters, President has power to give pardon, reprieve, remission, commutation, etc. Clause second, nothing in the subclause A of the clause first shall affect the powers conferred by law on any officer of the armed forces of the Union to suspend, remit or commute a sentence by a court martial. Though this power has been conferred to the President, but in the Army Act, Air Force Act or Navy Act, the power of remission, suspension or commutation has been conferred to any officer of the Army, Navy or Air Force. The power of that officer existed and shall not affected by the clause A of the subclause A of the clause first of the Article 72. राहुल, आप जिसका वेट कर रहे थे शायद आ गए वो लोग. यस, क्लॉज 30, नथिंग एच मिसिंग है इसमें. Nothing in subclause A of the clause first shall affect the power to suspend, remit or commute a sentence of death exercised by the governor. ये clause C होगा. Subclause C of the clause first. Nothing in the subclause C of the clause first shall affect the power to suspend, remit or commute a sentence of death exercisable by the governor of the state under any law for time being in force. Though pardon shall not be granted by the governor, power of granting pardon is exclusively vested in the president, but under the any law, the power of remission, power of suspension, power of commutation has been conferred to the governor. Governor can exercise the power of the suspension, remission or commutation of the sentence of death. Power of pardon, to grant the pardon to the death sentence, this power is only vested in the president. अनुच्छेद 72 देखेंगे आप, समा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति. और ये राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है? ये न्यायिक शक्ति है. कैसी है ये जुडिशियल पावर है. राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने की और उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार करने की या दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति इन तीन प्रकार के मामलों में होगी. उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश किसने दिया है? सेना न्यायालय ने दिया, कोर्ट मार्शल ने दिया है.
सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम के अंदर गठित जो कोर्ट मार्शल है या सेना न्यायालय, उसने कोई दंड या दंडादेश दिया है तो उसमें परिहार, विलंबन, लघुकरण, क्षमा आदि की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। और थर्ड, उन सभी मामलों में जिसमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है। इन तीन प्रकार के मामलों में जो है वो समाधान आदि देने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्लॉज सेकंड, खंड फर्स्ट के उपखंड का कि कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। यदि किसी विधि के अंतर्गत सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम आदि के अंतर्गत किसी सीनियर ऑफिसर को जो है वरिष्ठ अधिकारी को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड या दंडादेश को निलंबन करने की, परिहार करने की, लघुकरण की शक्ति दे रखी है, तो वो सीनियर ऑफिसर भी अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट भी वो पावर एक्सरसाइज कर सकता है। उस सेना के अधिकारी द्वारा पावर एक्सरसाइज करना ये आर्टिकल नहीं रोकता है, उसकी पावर समाप्त है, वो नहीं करता है। क्लॉज थर्ड, ऊपर वाले में कई आएगा, इसमें ग आएगा। इसका कनेक्शन कोर्ट मार्शल से, इसका कनेक्शन डेथ सेंटेंस से। डेथ सेंटेंस सी में और कोर्ट मार्शल ए में। खंड फर्स्ट के उपखंड ग, खंड फर्स्ट के उपखंड ग की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयुक्त मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। क्लॉज थर्ड का मतलब यह है कि डेथ सेंटेंस जो है उसको पूर्ण रूप से माफ तो राज्यपाल द्वारा नहीं किया जा सकता, पार्डन नहीं दी जा सकती राज्यपाल द्वारा, बट राज्यपाल द्वारा जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जिस विषय पर है उससे संबंधित विधि में यदि कोई मृत्यु दंडादेश दिया गया, उस मृत्यु दंड को राज्यपाल परिहार कर सकता है, उसका निलंबन कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकता। पूर्ण रूप से माफ करने की या क्षमा देने की या पार्डन देने की पावर केवल राष्ट्रपति में नहीं थे, बट निलंबन की, परिहार की और लघुकरण की कोई शक्ति दी गई है यदि किसी विधि के अंतर्गत राज्यपाल को, राज्यपाल इन तीनों शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है और कम्यूट भी कर सकता है, बट पार्डन नहीं दे सकता। पार्डन के पार्ट पर जो है वो क्लॉज थर्ड क्या है, साइलेंट। मृत्यु दंडादेश में पूर्ण रूप से समाधान देने की शक्ति किसमें निहित है, केवल राष्ट्रपति के पास निहित है। परंतु राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार क्षेत्र का कोई विवाद है, उसकी किसी विधि के अपराध में, किसी विधि में राज्यपाल को मृत्युदंड के है वो प्रविलंबन, निलंबन, विराम, लघुकरण आदि की शक्ति दी गई है, तो राज्यपाल उपयुक्त वर्णित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, निलंबित कर सकता है, उसका लघुकरण कर सकता है, उसका परिहार है वो कर सकता है, लेकिन माफ नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता। पूर्ण रूप से माफ करने की, क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति में नहीं है। What is the meaning of these terms which use under the Article 72 of the Constitution? First of all, the pardon. Both the sentence and execution and absolve the offender from the all punishment is known as the pardon. Pardon from the sentence and execution both. Whatever sentence has been given and execution thereto, pardon from the both is known as the pardon, and absolves to free from the offender from all punishment or disqualification. It is the effect of the pardon. What is the meaning of commutation? Merely substitute the one form of punishment for another form of a lighter character of the punishment, like death in LI in the certain years of the imprisonment into the fine. It is the commutation. Remission, reduce the amount of sentence, quantity of the sentence, quantum of the sentence without changing its character. If the 10-year imprisonment has been inflicted and after 5 years grant the remission or discharge from the undergone the reminder sentence, it is known as the remission. Respite, awarding a lesser sentence instead of the penalty prescribed is known as the respite.
and reprieve, stay of execution of the sentence during the pendency of the proceeding for pardon or commutation of the death sentence before president, etc. The president can pass the order of the reprieve the death sentence, and that is having the effect of stay of execution of the death sentence till the pendency of the mercy petition before the president or governor. प्रविलंबन, ये केवल मृत्युदंड में लागू होता है। इस तरीके का बुक में आपको इंटरप्रिटेशन मिल सकता है। राष्ट्रपति के समक्ष समाधान या लघुकरण की याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रविलंबन का ऑर्डर किया जा सकता है। निलंबन, दंडादेश के निष्पादन को अस्थायी रूप से रोकना, टेम्परेरी जो है उसको रोकना या स्टे करना जो है वो क्या है, वो सस्पेंशन है, वो निलंबन है। परिहार, आचरण के आधार पर या गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण के आधार पर दंड की प्रकृति को बिना परिवर्तित किए दंड को कम करना जो है वो क्या है, रेमिशन कहलाता है। 26 जनवरी को प्रेसिडेंट के द्वारा कई सारे जो कैदी है जिनका आचरण जेल में रहने के दौरान ठीक रहता है उनको रेमिशन पर है वो छोड़ा जाता है। विराम, विशेष कारण से दंड को कम करना जो है विराम कहलाता है। और लघुकरण, बड़े दंड को जो है छोटे दंड में बदलना, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में, आजीवन कारावास को 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास में है वो 7 वर्ष से कम अवधि के कारावास को जुर्माने आदि में, कठोर कारावास को सादा कारावास में, ये सब क्या है, ये लघुकरण है। What are the differences between the power of president and power of governor? What are the differences between the power of president and power of governor in respect of the pardoning power, etc.? Article 72 is concerned to the power of president and 161 is concerned to the governor. President may grant the pardon in case of the death sentence or death punishment, whereas governor may not grant the pardon in case of the death sentence but may commute, suspend, remit, etc. President may pardon, etc. in case of the punishment or sentence given by the court martial, whereas governor has no power in case the punishment or sentence given by the court martial. These are the two basic difference between the power of president or governor conferred under article 72 or 161 of the constitution. राष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यायिक शक्ति की यदि तुलना की जाए तो क्या डिफरेंस है दोनों में? मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड को जो है पूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? निलंबन, परिहार, लघुकरण, ये राज्यपाल भी कर सकता है। पूर्ण रूप से माफ करने की या पार्डन देने की पावर राज्यपाल के पास नहीं है। सेना न्यायालय द्वारा पारित दंड या दंडादेश है उसके संबंध में क्षमा, निलंबन, लघुकरण की शक्ति का प्रयोग जो है वो केवल राष्ट्रपति कर सकता है, जबकि राज्यपाल को सेना न्यायालय द्वारा पारित दंड या दंडादेश के संबंध में अनुच्छेद 72 के अंतर्गत कोई शक्ति नहीं है या 161 के अंतर्गत कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। सेना न्यायालय के संदर्भ में एक्सक्लूसिव पावर प्रेसिडेंट के पास है और पार्डन देने की पावर भी डेथ सेंटेंस की वो प्रेसिडेंट के पास है। ये दोनों पावर गवर्नर के पास नहीं है। बाकी पावर्स में गवर्नर और प्रेसिडेंट जो है कंकरेंट है। रेमिशन, सस्पेंशन, कम्यूटेशन ये दोनों के पास है। मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 74। वो जीके में जो पढ़ा रहे हैं ना सर, उसमें इंटरव्यू वाले में वो सर से मटेरियल लेके एप्लीकेशन पे अपलोड करवाना, और रेगुलर बैचेज जो उसमें भी डाल रहे हो ना इंटरव्यू वाली क्लासेस। यस, आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। फॉर व्हाट पर्पज दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर यूनियन to add and advise to the president. There shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in exercise of his functions and act in accordance with the such advice, provided that the president may require the council of ministers to reconsider such advice either generally or otherwise, and president shall act in accordance with the advice tendered after the such reconsideration.
there shall be a council of ministers for union and with the prime minister at the head of that institution, that council of ministers. And what would be the function of the council of ministers? To add and advise to the president to perform the functions of as president or to act as president according to the such advice of the council of ministers. President has power under the proviso annexed with the clause first of the article 74 to resend or return the advice given by the council of ministers one time, and after reconsidered by the council of ministers, the same advice has been given by the council of ministers at second time. At subsequent stage, president is bound to follow or to observe that advice given by the council of ministers. The third time, the concern or the latter stage, this advice shall not be ignored by the president. It is expressly provided under this proviso, and most probably this proviso added by the 44th Constitution Amendment Act 1978. Clause second, the questions whether any and if so what advice was tendered by the minister to the president shall not be inquired into in any court. If any question arises whether any and if so what advice was tendered and given by the council of ministers to the president, whether court has jurisdiction to require the furnish that advice given by the council of ministers to the president? No, it is a privilege between the council of ministers and president, and court cannot exercise the power of inquiry etc. in respect of that advice. § 74, 75 एटसेट्रा ये प्रोविजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है, मंत्री परिषद जो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, संघ की कार्यपालिका का भाग है। अनुच्छेद 74 में आप देखेंगे राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को जो है सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद जो है वो होगी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और जिसका प्रधान है वो कौन होगा, उसका हेड है वो कौन होगा मंत्री परिषद का, मंत्री परिषद का जो है प्रमुख है वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। शैल एक्ट, क्या टर्मिनोलॉजी यूज ली गई है? शैल एक्ट मैंडेटरी है, एडवाइस के अनुसार है वो कार्य है वो किया जाना। पर्पज क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, मंत्री परिषद का जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, और मंत्री परिषद जो होगी उसका प्रमुख है वो कौन होगा, प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री है वो होगा। और राष्ट्रपति जब भी राष्ट्रपति के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा, कार्य करेगा, तो उस मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार करेगा, क्योंकि हमने जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, संसदीय शासन व्यवस्था को है वो अडॉप्ट किया है, जिसमें जो एक्चुअल पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है उसमें निहित होती है, और राष्ट्रपति जो है वो केवल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक है वो प्रमुख है यूनियन का। तो उस कंसेप्ट के अनुसार जो है राष्ट्रपति को अपने राष्ट्रपति के रूप में जिन शक्तियों का प्रयोग करना है, जिन कृत्यों का निर्वहन करना है, वो मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा, अज्ञापक है उसके लिए। यद्यपि इस परंतु के अधीन जो है एक बार दी गई सलाह को वापस भेज सकता है पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति, बट सेकेंड टाइम सेम सलाह या अमेंडेड सलाह दे दी जाती है तो सेकेंड टाइम राष्ट्रपति जो है फिर वापस नहीं भेज सकता रिकंसिडरेशन के लिए या पुनर्विचार के लिए। उसे वो रिकंसिडरेशन के बाद, पुनर्विचार करने के बाद भेजी गई सलाह के अनुसार ही कार्य वो करना होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणता या अन्यथा पुनर्विचार करने की जो है वो अपेक्षा कर सकता है, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। एक बार जो है मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को लौटाई जा सकती, वापस भेजी जा सकती राष्ट्रपति के द्वारा जो है मंत्री परिषद को रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार करने के लिए, और पुनर्विचार करने के बाद जो दी गई सलाह है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति को क्या बनाया गया है, बाध्य बनाया गया है। ऐसा नहीं कि एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज ली तो दोबारा भी भेज ले, तीसरी बार भी भेज ले, नो, ओनली वन टाइम जो है रिकंसिडरेशन के लिए भेजी जा सकती है,
और रिकंसिडरेशन के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति को बाउंड बनाया गया, बाध्य है वो बनाया गया। और ये इस तरीके का प्रावधान एक बार लौटाने की शक्ति देने वाले का ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से ये प्रोविजो जो है, ये परंतुक जो है वो ऐड हुआ है। जनता पार्टी जब सरकार में आई थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तब जो है इस तरीके के कुछ रिफॉर्म्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, संवैधानिक है वो सुधार है वो किए गए थे। उन रिफॉर्म में से एक ये प्रोवाइजो भी है वो था। क्लॉज सेकंड, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है, और यदि दी है तो क्या दी है। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को जो सलाह दी है वो विशेषाधिकार है, उनका क्या है, प्रिविलेज है, और उस प्रिविलेज के बारे में किसी प्रकार की कोर्ट के द्वारा कोई इंक्वायरी नहीं की जा सकती। न्यायालय के द्वारा जांच करने का क्षेत्राधिकार वर्जित कर रखा है। जुरिसडिक्शन कोर्ट का जो है इंक्वायरी करने का उसको बार्ड कर रखा है, इसके अंदर रेस्ट्रिक्ट कर रखा है अनुच्छेद 74 के क्लॉज 2 के अंदर। और आपने सेक्शन 165 ऑफ बीएसए, 165 ही है ना, सेक्शन 165 ऑफ बीएसए 2023 में जो है एक ऐसा एक्सप्रेस प्रोविजन भी डाल दिया गया है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कोई कम्युनिकेशन भी हुई है, समसूचना भी हुई है, तो उसको भी जो है कोर्ट में पेश करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। कोर्ट में पेश करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस बाय द कोर्ट या प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। इस तरीके का एक प्रोविजन जो है नया जो आपका एक्ट है बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, उसके सेक्शन 165 में भी इस तरीके का प्रोविजन ऐड हुआ है। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 सुप्रीम कोर्ट। This judgment is concerned to the interpretation of the clause 2 of Article 74. Article 74 clause 2 only prohibits the inquiry into the questions whether the minister SR Bommai versus Union of India 1994 Supreme Court. This judgment is concerned to the interpretation of the clause 2 of Article 74. Article 74 clause 2 only prohibits the inquiry into the questions whether the minister gave the any advice to the president, and if so what. It does not prevent, Article 74 clause 2 does not prevent the court from summoning the Union Council of Ministers to reveal the material on which the president had constituted the requisite satisfaction. The material on which the advice was given does not form part of the advice, on the basis of the which material the advice has been given by the Council of Ministers to the president. That material is not the part of that advice, and court can call that material for the purpose of the inquiry or for the purpose of the inspection, etc. Whether there is a constitutional satisfaction of the president or not, the power has been exercised arbitrary or as per the scheme of the constitution for that purpose, that material may be called by the Supreme Court, High Court or the other courts. Even if the material is seen or shown to the president, it does not partake in the nature of the advice. Though that material on the basis of which the advice has been given by the Council of Ministers to the president has been seen by the president, has been shown to the president, it ipso facto not becomes the part of that advice. That material can be called by the court. Section 123 of the Indian Evidence Act 1872 and Article Indian Evidence Act and Article 74 clause 2 applied to the different areas. Provision of 123 of the Indian Evidence Act, which is concerned to the privilege as to the affairs of the state, the document as to the affairs of the state, and the 74 clause 2 at the different footing, it is concerned to the advice given by the Council of Ministers to the president. In respect of that advice, court cannot inquire and court cannot make a inquiry.
it may so happen in defending the proclamation, the minister or the officer concerned may claim the privilege under section 123. If and when such privilege is claimed, it shall be on its own merits in accordance with the provision of section 123 and will be decided on that basis. The crux of this judgment is that though in respect of the advice given by the Council of Ministers to the President, court has no jurisdiction to make inquiry, but the material on the basis of which the advice has been given by the Council of Ministers to the President, that material may be seen or looked by the court for the purpose of the inquiry if there is a satisfaction on the part of the President or not. Material can be called, but in respect of advice the court cannot make an inquiry. SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अनुच्छेद 74 के क्लॉज 2 के इंटरप्रिटेशन के बारे में। अनुच्छेद 74 का क्लॉज 2 केवल इस प्रश्न की जांच पर रोक लगाता है कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। इसके बारे में अनुच्छेद 74 का क्लॉज 2 वर्जना लगाता है, रोक लगाता है कि कोर्ट इसके बारे में कोई जांच नहीं कर सकता। कोई सलाह दी इसके बारे में जांच नहीं कर सकता और दी गई है तो क्या सलाह दी गई इसके बारे में भी कोर्ट जो है वो जांच नहीं कर सकता। ये मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच का क्या है, विशेषाधिकार है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन आदि की श्रेणी में आता है। यह न्यायालय को उस सामग्री को प्रकट करने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद को बुलाने से नहीं रोकता है कि जिस पर राष्ट्रपति ने अपेक्षित संतुष्टि का गठन किया था। बट 74 का क्लॉज 2 जो है कोर्ट को उस सामग्री को प्रकट करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपेक्षा करने से नहीं रोकता, समन आदि के माध्यम से कॉल करने से नहीं रोकता है, जिसके आधार पर, जिस सामग्री के आधार पर जो है राष्ट्रपति संतुष्ट है वो हुए थे, है वो उस एडवाइस के बेसिस पे जो है, उस मटेरियल के बेसिस पे जो है एक्शन लेने के लिए राष्ट्रपति है वो सहमत हुए थे, उस सामग्री को कोर्ट मंगवा सकता है कि वो सामग्री जिसके बेसिस पे ओपिनियन फॉर्म की गई थी, एडवाइस फॉर्म है वो की गई थी, क्या वो मटेरियल जो है वो सेटिस्फैक्टरी मटेरियल था या नहीं, वो सामग्री कोर्ट है वो कॉल कर सकता है। उस सामग्री को कोर्ट में पेश करने से जो है अनुच्छेद 74 का क्लॉज 2 मनाही नहीं करता है, वर्जना है वो नहीं करता है। जिस सामग्री के आधार पर सलाह दी गई थी वो सलाह का भाग नहीं होता है। कोर्ट ने यह भी इंटरप्रिटेशन किया कि जिस मटेरियल या सामग्री के आधार पर एडवाइस दी गई वो सामग्री स्वतः उस सलाह का भाग है वो नहीं होती है। मटेरियल अलग है और एडवाइस अलग है, इसलिए एडवाइस के बारे में इंक्वायरी नहीं की जा सकती, बट सामग्री जो है वो कोर्ट के द्वारा कॉल की जा सकती, कोर्ट मंगवा सकता है, देख सकता है उसको जो है। भले ही सामग्री को राष्ट्रपति के द्वारा देखा गया या राष्ट्रपति को दिखाया गया हो, या सलाह की प्रकृति का जो है वो हिस्सा है वो नहीं है, सलाह की प्रकृति का जो है वो भाग है वो नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और संविधान का अनुच्छेद 74 का क्लॉज 2 ये दोनों भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लागू होते हैं, डिफरेंट एरियाज में लागू होते हैं। इनका स्कोप और एम्बिट जो है वो डिफरेंट है, भिन्न है। ऐसा हो सकता है कि उद्घोषणा का बचाव करते हुए मंत्री या संबंधित अधिकारी धारा 123 के अंतर्गत विशेषाधिकार का दावा कर सकते हैं। यदि और जब इस तरीके के विशेषाधिकार का दावा किया जाता है तो धारा 123 के प्रावधानों के अनुसार अपने गुणावगुण के आधार पर उसे तय किया जा सकता है। उद्घोषणा का यहाँ मतलब जो है वो नेशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल रूल आदि के लिए भी जो है जो मटेरियल है वो भेजा गया था, जिसके बेसिस पे जो है वो घोषणा की गई, उस मटेरियल को कोर्ट देख सकता है कि वो डिसीजन जो है वो लिया गया प्रोक्लेमेशन वो इश्यू करने का, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल था या आर्बिट्री था, मनमाना था। उस पर्पज के लिए भी उस मटेरियल को, उस सामग्री को जो है वो देखा जा सकता है प्रेसिडेंशियल रूल आदि की घोषणा के बारे में। करक्स इस जजमेंट का ये है कि सलाह के बारे में तो कोर्ट जांच नहीं कर सकता, ये अनुच्छेद 74 के खंड 2 में वर्जित है। बट जिस सामग्री के आधार पर सलाह दी गई थी उस सामग्री को कोर्ट मंगवा भी सकता है देखने के लिए, और जो है वो सलाह का हिस्सा या भाग है वो नहीं होती है। आर्टिकल 75 other provision as to the ministers. Certain provision is provided under Article 74 of the Constitution. There shall be a council of minister and at the head of the prime minister, and the president shall exercise the powers and functions and act according to that advice. That provision has been provided under the clause 1st of Article 74. In addition to that, the other provision related to the council of ministers provided under Article 75 of the Constitution shall
Prime Minister shall be appointed by the which authority? By the President, and other minister shall be appointed also by the President, but on the advice of the which authority? On the advice of the Prime Minister. Prime Minister, who shall be head of the Council of Ministers of Union, shall be appointed by the President, and other ministers shall be appointed by the President, but on the advice of the Prime Minister. अनुच्छेद 75 आप देखेंगे 75 6 क्लॉजेज है, इसमें 6 खंड है। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, मंत्रियों के बारे में एक उपबंध आपने अनुच्छेद 74 के क्लॉज फर्स्ट में पढ़ लिया कि भारत संघ की एक मंत्री परिषद होगी और वो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देगी और राष्ट्रपति जो है उस सलाह के अनुसार है वो कार्य करेगा और उस मंत्री परिषद का प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होगा। ये इतना प्रावधान तो आपने 74 के क्लॉज फर्स्ट में पढ़ लिया। उसके अलावा जो है मंत्रियों के बारे में अन्य जो प्रावधान है, उनको अपॉइंट है वो कौन करेंगे, उनका टर्म है वो क्या रहेगा, उनको किस तरीके की ऑथ और अफर्मेशन है वो लेनी होगी, वो जो है वो उनको सैलरी अलाउंसेस वगैरह है वो क्या मिलेंगे, इन सब के बारे में किसके प्लेजर पे वो अपना ऑफिस है वो मिनिस्टर का होल्ड करेंगे, इन सब के बारे में डिटेल प्रोविजन जो है इस आर्टिकल 75 में किया गया है। मंत्री जो है मंत्री परिषद, उसमें तारों में चंद्रमा के समान कौन है? प्रधानमंत्री है। कौन है? कई तारों में जो है ज्यादा चमकने वाला जो है वो तारा वो जो है वो प्रधानमंत्री है। तो इसलिए प्रधानमंत्री भी एक मिनिस्टर है। क्या है वो भी एक मंत्री है, बट वो मंत्रियों का क्या है? हेड है, इसलिए उसको प्राइम मिनिस्टर के नाम से वो जाना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। छोटी बात है, बट प्रीलिम्स के पेपर में पूछ ली जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी भारत की जनता द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, और भी कोई है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आदि के द्वारा ऐसा हो सकता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति जिस प्राधिकारी में निहित है आर्टिकल 53 के क्लॉज फर्स्ट के अनुसार, उसी के द्वारा जो है मंत्री परिषद का जो हेड है उसकी नियुक्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी। बट यहां जब अन्य मंत्रियों की बात आएगी तो किसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा? किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी? प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की चॉइस किनको वो अपनी जो है वो टीम के अंदर शामिल है वो करना चाहता है, किन एमपीज को जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, चाहे वो हाउस ऑफ पीपल्स है और चाहे वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, उन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। आप देखते हैं ओथ सेरेमनी, देखते हैं ना, हाउस ऑफ पीपल के चुनाव हुए उसके बाद आपने शपथ कार्यक्रम जो है वो देखा होगा। तो उस कार्यक्रम के अंदर द्रौपदी मुर्मू जी एक साइड में खड़े थे ना खड़े, वो स्टार्टिंग कर रहे थे, आई इतना कह के छोड़ रहे थे, फिर आगे मिनिस्टर है वो अपना नाम बता के और शुरू हो रहा था। 1 बाय 1 सबसे पहले मोदी जी आए थे शपथ लेने के लिए, फिर 1 बाय 1 जो है अमित शाह और अन्य जो है इंक्लूडिंग गजेंद्र सिंह शेखावत आदि जो है 1 बाय 1 है वो ओथ लेने आए थे। वो ओथ सेरेमनी में क्या हो रहा था? अपॉइंटमेंट हो रहा था, और उसके बाद जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर पर जो है उस पर द्रौपदी मुर्मू जी के सिग्नेचर हो रहे थे और ऑथ और अफर्मेशन जो है वो ली जा रही थी, उस पर सिग्नेचर कंसर्न मिनिस्टर है वो कर रहा था। तो वो जो ओथ सेरेमनी में इस प्रोविजन की क्या है? कंप्लाइंस है वो होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। जो मेजोरिटी वाला जो पार्टी है, बहुमत जिस पार्टी को है वो मिला है, उस पार्टीज के सारे एमपीज जो है वो एक मीटिंग करते हैं ओथ सेरेमनी से पहले और अपना नेता डिक्लेयर करते हैं। ये हमारा नेता है वो कौन होगा, या हम प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसको है वो पसंद है वो करेंगे। तो उनकी सबकी है वो चर्चा होती है, उसमें संगठन के लोग भी रहते हैं और उसके साथ साथ जो एमपी के रूप में जो जीत के आए उन सब की है वो मीटिंग में तय होता है कि कौन होंगे। पिछली 3 मीटिंगों में जो है वो निर्विरोध रूप से नरेंद्र मोदी जी का नाम ही है वो लिया जा रहा है, और जब तक मुझे लग रहा है कि ये जीवित है, अगले चुनाव 2029 वगैरह में जब भी होने हैं तो चौथी बार भी इनका ही नाम है वो लिए जाने की संभावना है। और यदि उनके बाद ऑप्शन पर विचार करें तो मैं योगी जी को जो है वो सेकंड है वो नंबर पर अमित शाह से पहले जो है वो नाम देने के लिए मेरी अभी संशय है, माने न माने वो उनकी मर्जी है। यस,
अन्य मंत्रियों के नाम पर भी चर्चा होती है। जब प्राइम मिनिस्टर का नाम तय हो जाता है तो उसके बाद जो है वो प्रमुख जो है कंसर्न पार्टी के जो है वो प्रमुख पदों को धारण करने वाले जो लोग हैं वो अन्य मंत्रियों के नाम पर भी है वो चर्चा करते हैं कि अब कैबिनेट मिनिस्टर्स के रूप में किन को शामिल किया जाए, इंडिपेंडेंट चार्ज या स्टेट मिनिस्टर्स के रूप में किन को बनाया जाए, और डिप्टी मिनिस्टर्स के रूप में थर्ड कैटेगरी के जो मिनिस्टर है उन किन को बनाया जाए, उस पर भी है वो चर्चा होती है। और उस चर्चा के दौरान ही तय हो जाता है, बाद में तो केवल फॉर्मेलिटी होती है। जो लिस्ट प्रधानमंत्री उस समय तय करके भेज देता है, ये लोग हैं, इनको तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की जो है वो दिलानी है, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में या स्टेट मिनिस्टर के रूप में दिलानी है, और इनको जो है डिप्टी मिनिस्टर के रूप में दिलानी है। प्रधानमंत्री जो है वो तय करके एक लिस्ट राष्ट्रपति कार्यालय में भिजवा देता है। उसी क्रम से, जो क्रम प्रधानमंत्री ने निर्धारित किया है, उसी क्रम से जो है वो ऑथ और अफर्मेशन दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति है वो करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करता है। क्या प्रधानमंत्री की एडवाइस के अगेंस्ट जाके भी प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से किसी को है वो यूनियन का मिनिस्टर बना सकता है? नहीं बना सकता। ऐसा होगा तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएगा, संसदीय शासन व्यवस्था जो है उसके विरोध में हो जाएगा। तो फिर क्या होगा उसका? यदि ऐसा राष्ट्रपति महोदय करने की कोशिश करेंगे तो जैसा धनखड़ साहब के साथ हुआ ऐसा हो जाएगा। फिर इस्तीफा के लिए तैयार रहें, रेजिग्नेशन के लिए जो है वो रेडी रहे। इस तरीके से कोई कॉन्ट्रेरी रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके कोई एक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो उस पद पर पदासीन नहीं हो सकते। क्या धनखड़ साहब ने किया था उस सब पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, बट देखा आप लोगों ने, हमने अचानक से जो है वो दिन में कुछ प्रतिक्रिया हुई, शाम को रेजिग्नेशन जो है वो देने पहुंच गए थे। अभी तक भी है वो धनखड़ साहब नहीं आ रहे हैं, वो और कुछ भी बोल नहीं रहे हैं उसके बारे में कि क्या हुआ और कैसे हुआ। यस, क्लॉज 1A, द टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर in the council of ministers shall not exceed the 15% the total number of the members of the house of the people added by the 91st constitution amendment act 2003. This clause 1A, this clause 1A added by the 91st constitution amendment act 2003, in which the total number of the ministers have been fixed, limitation has been fixed by the Indian Parliament, shall not exceed the 15% of the total number of the members of House of People. लोकसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या है उन सदस्यों की संख्या से 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होंगे। हम 1 मिनट के लिए मानते हैं कि लोकसभा में 500 है, हालांकि 500 नहीं, ज़्यादा है ना, जो भी है 543 के आसपास रहते हैं। हम एक बार 500 है वो मान लेते हैं, तो 500 का 15% कितना हुआ? 75। 500 का 15% जो है वो क्या हुआ? सीधा गणित का नियम जो है, इस 15 को 5 से कर लेंगे, ये 0000 इनसे कट जाएंगे, तो 75 हो गए। यदि 500 लोकसभा के सदस्य होंगे तो मैक्सिमम कितने मिनिस्टर हो सकते हैं? 75। और 100 ही हो तो 15। यदि लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 100 होती तो मैक्सिमम कितने मिनिस्टर हो सकते हैं? 15। 200 हो तो 30 हो सकते हैं, 300 हो तो 45 हो सकते हैं, और 400 हो तो 60 हो सकते हैं, 500 हो तो 75 हो सकते हैं। और यदि 545 हो तो 545 हो तो लमसम 83, लमसम 83 जो है वो हो सकता है। 83 है, 15 पे 15% है, 6 पे 1 है, 7 पे 1, तो हाँ लगभग इतना ही, 82 या 83, 82 या 83। 82 से पॉइंट में ऊपर चले गए तो फिर आदमी का जो है हाथ पैर नहीं काटा जा सकता, वो पूरा ही होगा। सो पॉइंट्स में ऊपर गए तो वो 83 ही होगा। तो लमसम मेरा आइडिया ऐसा है कि यदि 545 होते हैं कंप्लीट, एंग्लो इंडियन वाले तो चले गए, तो अब वो कैसे है, 543 है या 545 है, तो उसमें लमसम 83 मैक्सिमम मिनिस्टर हो सकते हैं एट ए टाइम।
पहले क्या होता था, कुछ सरकारें ऐसी आई, कौन सी, मिली जुली सरकारें, गठबंधन वाली जो सरकारें जो है वो ऐसी आई जिसमें 100 से आंकड़ा बाहर हो जाता था मिनिस्टर्स का, सबको खुश करने में है वो लगा देते, इस कास्ट को भी खुश कर लो, इस एरिया को भी खुश कर दो, इस स्टेट को भी खुश कर लो। इसमें 81 पॉइंट आ रहा है तो 82 कर दो, 82 कर दीजिए आप। तो ऐसी कंडीशन में 100 से भी ज्यादा मिनिस्टर हो जाते थे, 110, 120, 130 तक। उस संख्या को लिमिट करने के लिए 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 लाया गया और इसमें एक लिमिट फिक्स कर दी गई कि आपके लोकसभा के कुल सदस्यों की जो संख्या है उसका मैक्सिमम आप कितने मिनिस्टर रख सकते हो, 15%। ये मैक्सिमम है, इससे कम हो सकते हैं, 82 की जगह 80 हो सकते हैं, 75 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, बट इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। और क्रॉस करना है तो फिर दूसरा सरकारों ने तरीका अपना दिया, 2 साल के लिए जो है देवीदान को रख दिया मिनिस्टर, इनसे इस्तीफा ले लिया और कोई है वो देवीदान की जगह सेवीदान है उसको बना दिया। 5 साल का होता है ना, 2 साल 2.5 साल पहले किसी एक और व्यक्ति को रख दिया और उसको हटा के उसकी जगह दूसरे को दे दिया। तो एक साथ तो नहीं बनाए, बट वो एक को है वो इस्तीफा दिला के दूसरे को बना दिया, आधे टाइम एक को मिनिस्टर रख दिया, आधे टाइम दूसरों को, ऐसा भी कर लेती। मैक्सिमम लोग कॉमन रहते हैं, बट कुछ 20-30 लोग ऐसे हैं जो शुरू के 2-2.5 साल तक मिनिस्टर रहेंगे, फिर उनसे इस्तीफा लेके उनकी जगह पर दूसरे वो मंत्रालय चेंज हो जाते हैं या पहले वाले को मंत्री से हटा दिया जाता है और दूसरे को बना दिया जाता है। तो सरकारों ने दूसरा तरीका तय कर दिया। परीक्षा के लिए 2 सवाल बन सकते हैं, एक तो ये परसेंट कितने हैं और किसके नंबर के साथ ये बन सकता है, दूसरा ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ है। ये दोनों बातें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। 1B हिंदी में देखेंगे आप 1A, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। लोकसभा के कुल सदस्यों की जो संख्या है उसके 15% से अधिक है वो नहीं होगी, प्रधानमंत्री को इंक्लूड करते हुए। ये एक सीमा जो है, एक रेस्ट्रिक्शन जो है इस अनुच्छेद 75 के खंड 1 क के द्वारा लगाया गया। और ये कौन से संवैधानिक संशोधन से इस तरीके की बात, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था, किस संशोधन से डाला ये 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 था, उसके माध्यम से इंसर्ट हुआ है। ये अगला क्लॉज भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया है वो 91 से। अ member of the either house of the parliament belonging to the any political party who is disqualified for being a member of the house under para 2nd of the 10th schedule shall also be qualified to be disqualified to be appointed as a minister under the clause first for the duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire, or where he contest the any election to the either house of the parliament before the expiry of the such period till the date on which he is declared elected, whichever is the earlier, for that period the concerned person is also disqualified as appointed as the minister of union. His membership is ceases as a member of the House of People or Council of State from the date of declaration under the para 6th of the 10th schedule of Constitution, along with or read with the para 2nd of 10th schedule of the Constitution, and he shall also be disqualified to be appointed as a minister of the union for certain period, generally till the expiration of the term of his office, or if before the expiration of that period he contested the election and he elected as a member, then that time period, whichever is earlier from these two time, whichever is the earlier, for that period that he also be disqualified as appointed as a member of Council of Ministers. And this clause 1B of the Article 75 also added by the 91st Constitution Amendment Act 2003. ये जो एक ख है अनुच्छेद 75 का है वो उपखंड 1 ख
किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा सेकंड मीन्स दल परिवर्तन के कारण अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्धारित है, अपनी निर्धारितता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वो ऐसी अवधि के लिए समाप्ति से पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है तो उस तारीख तक उसको वो निर्वाचित घोषित किया गया। इनमें से जो भी पूर्वोत्तर है, इन दोनों में से जो भी अवधि पहले आती है वहां तक की अवधि के दौरान खंड फर्स्ट के अधीन वो मंत्री के रूप में भी नियुक्त किए जाने के लिए क्या होगा, निर्धारित होगा या डिस्क्वालीफाइड होगा। दो प्रकार की अवधियों की चर्चा कर रखी है। सबसे पहले तो दल परिवर्तन के कारण वो निर्योग्य हो गया संसद के सदस्य के रूप में, अनुसूचित 10 जो है 10वीं अनुसूची के पैरा सेकंड के अंतर्गत। उसका प्रभाव क्या आएगा, क्या वो ऐसा डिस्क्वालीफाइड होते हुए भी क्या मिनिस्टर के रूप में कंटिन्यू कर सकता है या उसको मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है? नहीं, उसे कुछ समयावधि के लिए वो मंत्री के रूप में भी निर्योग्य होगा। और वो किस पीरियड के लिए, मान लो जो है एक व्यक्ति जो है उसका 5 साल जो है वो कंसन सदन के अंदर सदस्य के रूप में उसका कार्यकाल था, और दूसरा जो है जिस दिन वो निर्योग्य हुआ वहां से जो है वो 3 साल में वो इलेक्शन लड़ता है, कोई बाई इलेक्शन आदि अदरवाइज, और उस इलेक्शन में वो क्या हो जाता है, इलेक्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये तो सामान्य उसका है वो कार्यकाल था संसद के सदस्य के रूप में, और ये 3 साल की अवधि जिसमें वो इलेक्शन के अंदर जो है वो निर्वाचित घोषित हो गया। तो इन दोनों में से कौन सी अवधि पूर्वोत्तर है? 3 ईयर। इन 5 वर्ष और 3 वर्ष में से जो पहले आने वाली अवधि कौन सी है? 3 ईयर। तो इस 3 ईयर के लिए वो क्या होगा, मंत्री के रूप में भी डिस्क्वालीफाइड होगा। अब मान लो वो रीइलेक्ट ही नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर 5 ईयर के लिए डिक्लेरेशन की डेट से, या मान लो वो 1 साल तो उसका पहले कंप्लीट हो गया था सदस्य के रूप में, बची हुई उसकी अवधि 4 वर्ष थी, 1 ईयर तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन से पहले कंप्लीट हो गया, बचा हुआ टर्म उसका क्या था, 4 ईयर था। तो ऐसी कंडीशन में 4 ईयर कंप्लीट होने तक वो क्या है, वो मंत्री भी नहीं बन सकता। मंत्री बनाने के लिए भी वो क्या होगा, निर्योग्य होगा, डिस्क्वालीफाइड होगा। ये लास्ट लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है कि वो मेंबर के रूप में ही डिस्क्वालीफाइड नहीं, वो मिनिस्टर्स के रूप में भी एक सर्टेन पीरियड के लिए जो है एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए क्या होगा, डिस्क्वालीफाइड होगा। वो मंत्री भी नहीं बन सकता एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए। और ये वाला जो क्लॉज है, क्लॉज 1B, ये भी है वो किस संशोधन से है वो ऐड हुआ है, ये भी सेम 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से है वो इंसर्ट हुआ है। ये कौन से अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ, ये भी प्रीलिम्स के पेपर में, ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछ लेते हैं। थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन, क्योंकि 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो हमें याद रहते हैं, बट 86 है वो भी रूटीन में याद रह जाता है, बट 91 थोड़ा सा टिपिकल है याद रखना। बट आप याद रखें 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके माध्यम से क्लॉज 1A और क्लॉज 1B, 1A और 1B दोनों जो है वो इंसर्ट हुए। क्लॉज 2, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ विच ऑथोरिटी, द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इंडिविजुअली मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस at the pleasure of the president, but council of ministers shall collectively responsible for which authority, for house of people। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद जो है वो तो सामूहिक रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है, वो लोकसभा के प्रति, और मिनिस्टर इंडिविजुअली जो है वो किसके प्लेजर पे अपना ऑफिस होल्ड करता है, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मंत्री जो है किसके प्रसाद पर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो अपना पद धारण करेंगे। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है, मंत्री परिषद का ही प्रसाद पर्यंत है या प्रधानमंत्री का ही प्रसाद पर्यंत है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो एक्चुअल पावर किस में वेस्टेड है, मंत्री परिषद में ही। क्लॉज 3, वन ऑफ द फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द विच हाउस, to the house of people। council of ministers shall be collectively responsible for the house of people।
If the Council of Ministers loses the confidence in the House of People, whether Council of Ministers are entitled to continue the hold of the office of ministers? No. No confidence bill shall be introduced in the House of People, and the government may be dismissed and new government may be formed if the any party in the majority. मंत्री परिषद जो है वो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। लोकसभा जो है उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, और यदि लोकसभा का विश्वास खो दे तो क्या मंत्री परिषद कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना पद कंटिन्यू रख सकते हैं? नहीं, मंत्री परिषद को जो है त्यागपत्र देने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं बनता, और यदि वो रेजिग्नेशन नहीं देते हैं तो नो कॉन्फिडेंस बिल, अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा हाउस ऑफ पीपल में, और वो नो कॉन्फिडेंस बिल पारित हो जाता है तो कंसर्न जो अल्पमत में जो पार्टी थी उनकी सरकार गिर जाएगी, और यदि फ्लॉट टेस्ट के अंदर जो है वो कोई दूसरी पार्टी अपना बहुमत साबित कर देती है, मेजोरिटी साबित कर देती है, तो उनकी गवर्नमेंट बन सकती है। और ऐसा आपने देखा भी है, देखा है ना ऐसा? कब देखा आपने निखिल? हाँ, वो तो ऐसे ही नौटंकी के रूप में लाया गया था, यहाँ तो फुल मेजोरिटी में थी वो तो गवर्नमेंट। आपने देखा नहीं है उसको। कब का जन्म है आपका? 98 का जन्म है। आपके जन्म के आसपास की घटना है ये, 1996-97 की घटना है, जब अटल बिहारी सरकार जो है वो बनी थी, और 13 दिन के बाद जो है एक बार गिर गई थी, और एक बार 13 महीने के बाद गिर गई थी। मैं 13 दिन वाले में भी बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, और 13 महीने वालों का कनेक्शन इससे है। 13 महीने की सरकार बनी थी, उसमें 1 वोट से गिर गई थी सरकार। जो है सरकार ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया था। लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल, इसका मतलब क्या है? लोकसभा का जो है विश्वास या बहुमत जो है वो हमेशा रूलिंग पार्टी के अंदर जो है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को है वो प्राप्त होना चाहिए। जो ही लोकसभा का विश्वास खो देते हैं, वो अल्पमत में आ जाते हैं, तो वो सरकार को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो नो कॉन्फिडेंस बिल जो है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम 13 महीने बाद जो है वो लाया गया था, जो भी ईयर था 1996 या 1997, तो उसमें जो है 270 चाहिए थे मेजोरिटी के लिए, ऐसा कुछ था, या 272 चाहिए थे। 1 वोट से जो है वो बीजेपी सरकार जो है वो गिर गई थी, और उसकी जगह पर जो है दूसरी सरकार है वो बनी थी, जिसमें ये कौन से थे? देवगौड़ा, हाँ HD देवगौड़ा, और भी कुछ टाइम वो रहे, फिर आगे कुछ टाइम तक एक दूसरे और प्राइम मिनिस्टर है वो रहे थे, ऐसे 6-6 महीने की सीमा, और फिर उसके बाद जो है वो नए चुनाव हुए, और फिर वाजपेयी सरकार फिर जो है मेजोरिटी के साथ जो है वो रूल में आई थी, या शासन है वो किया था। तो इसका मतलब जो ये है कि लोकसभा में जो है वो विश्वास मत हासिल होना चाहिए, लोकसभा में मेजोरिटी है वो होनी चाहिए। वो जो ही लोकसभा का विश्वास खो देंगे, लोकसभा में बहुमत है वो नहीं रहेगा, तो उसके साथ ही क्या सरकार या तो त्याग पत्र दे या अविश्वास जो है वो प्रस्ताव है उसको फेस करे। दोनों में से वो एक है वो फेस करना होगा। किसके प्रति सामूहिक रूप से मंत्री परिषद जो है वो रेस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के प्रति। ऐसा कहा जाता है कि ये लोकसभा जो है ये क्या है? ये जनता का सदन है। यहाँ डायरेक्ट जो है जनता के द्वारा चुने गए या इलेक्टेड जो मेंबर्स है वो रिप्रेजेंट है वो करते हैं, इसलिए उस सदन का जो है वो लोक सदन का या लोकसभा का जो है वो क्या है? हमेशा विश्वास है वो हासिल होना चाहिए। यदि विश्वास खो देते हैं तो सरकार जो है वो कंटिन्यू है वो नहीं रहेगी। क्लॉज 4, बिफोर a minister enters upon his office, the president shall administer. Who shall administer? President shall administer to him the oath of the office and secrecy. Oaths of the office and another secrecy. Oath of the office or secrecy according to the forms set out for the purpose in the 3rd schedule. Before the entering upon his office, President shall administer to oath to the every minister, oath of the office of minister and oath of secrecy. In which form? The form which is set out for such purpose in the 3rd schedule of the Constitution. Clause 4 देखेंगे आप। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, मंत्री का पद जो है
जहाँ पे भी सेक्रेटरीट आदि या वो बना हुआ है जहाँ मंत्री है वो बैठते हैं, वहाँ पर अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति जो है तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की क्या है, शपथ दिलाएगा। और ये पर्सनल ड्यूटी है प्रेसिडेंट की, इसमें कोई और किसी पर्सन को ऑथराइज नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति स्वयं जो है हर मंत्री को तीसरी अनुसूची में जो संघ के मंत्री के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दे रखा है, उस प्रारूप के अंदर पद की भी जो है वो शपथ दिलाएगा और गोपनीयता की भी वो शपथ दिलाएगा। क्लॉज 5, a minister who for any period of the 6 consecutively months is not a member of the either house of the parliament shall at the expiration of that period ceases to be a minister. A minister who for any period of the 6 consecutive months is not a member of the either house of parliament shall at the expiration of that 6 months period ceases to be a minister. The interpretation of this clause is that a person who is not or neither the member of the House of People or Council of Ministers may be appointed as minister. काउंसिल ऑफ स्टेट्स और जो न तो लोकसभा का सदस्य और न राज्यसभा का सदस्य, ऐसे व्यक्ति को भी क्या है, संघ का मंत्री बनाया जा सकता है। बट विद इन 6 months फ्रॉम दैट डेट he shall be elected or nominated as a member of the either House of People or Council of States. 6 महीने की अवधि के भीतर जो है जिस दिन उसे मंत्री नियुक्त किया गया, या तो लोकसभा की सदस्यता लेनी होगी उसको या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। वो इलेक्टेड मेंबर भी हो सकता है और नॉमिनेटेड मेंबर भी हो सकता है। बट 6 महीने में भी, जिस दिन नियुक्त किया उसके 6 महीने में भी वो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेने में फेल रहता है, असफल रहता है, क्या ऐसा व्यक्ति 6 महीने के एक्सपायरेशन के बाद भी मंत्री पद को कंटिन्यू कर सकता है? नो, इट इज प्रोहिबिटेड अंडर द क्लॉज 5 ऑफ द आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वो मंत्री नहीं रहे। ऐसे किसी व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो मंत्री बनाने की तारीख को न तो लोकसभा का सदस्य न राज्यसभा का सदस्य, लेकिन वो कितने समय तक रह सकता है? मैक्सिमम 6 महीने तक। ऐसा व्यक्ति जो न लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का सदस्य, वो अधिकतम 6 महीने तक के लिए मंत्री पद के लिए जो है मंत्री पद को धारण कर सकता है। 6 महीने की समाप्ति पर क्या प्रभाव होगा? वो मंत्री जो है पद है उसके लिए एंटाइटल नहीं रहेगा या वो मंत्री पद पर नहीं रह सकेगा। बट इस 6 महीने की अवधि के भीतर वो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित या मनोनीत हो जाता है तो वो कंटिन्यू कर सकता है। ऐसी कंडीशन में वो मंत्री पद को क्या है, कंटिन्यू कर सकता है। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे। एक एग्जाम्पल तो आपने हो सकता है लोकसभा में न देखा हो। लोकसभा में भी संघ के मंत्री परिषद में भी एक पंजाब के थे, कहाँ के थे, उनको एक को मिनिस्टर बनाया गया था जो लोकसभा और राज्यसभा किसी का सदस्य नहीं था। बाद में उनको कहीं बाई इलेक्शन वगैरह के अंदर जो है वो इलेक्ट करवाया। बट मुझे एक आध ऐसा नाम ध्यान है जो कहीं के जो है वो सदस्य नहीं थे, ऐसे व्यक्ति को भी बनाया गया था। और राजस्थान के अंदर भी देखा होगा आपने, विधानसभा में भी ऐसा हुआ था। गंगानगर के एक व्यक्ति थे सरदार जी, उनको मिनिस्टर बनाया था और उसके कुछ दिन बाद ही, सप्ताह 10 दिन बाद ही इलेक्शन हुए थे और उसमें वो हार गए। तो फिर वो 6 महीने तक तो वो मैक्सिमम रह ही सकते थे। 6 महीने में यदि वो नहीं कहीं से इलेक्ट हो पाते हैं तो फिर उनको सीट है वो खाली करनी होगी या मंत्री पद खाली करना होगा। इवन आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी वॉटेवर, वो भी हार गए थे। मैंने इलेक्शन के अंदर जो है विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके अंदर हार गए थे। सत्येंद्र नहीं, क्या नाम है उनका, अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी, ऐसे बीजेपी के कोई लीडर थे, उनसे हार गए थे चुनाव। उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बने थे और फिर बाई इलेक्शन वगैरह किसी एक सीट से हुआ था, वहाँ से वो 6 महीने के अंदर जीत गए। तो कुल मिला के इस क्लॉज का मतलब स्टेट के लिए अलग प्रोविज़न पढ़ेंगे हम आर्टिकल 164 में, बट ये जो है ये यूनियन के लिए। तो यूनियन में भी ऐसा कोई व्यक्ति मिनिस्टर हो सकता है। मिनिस्टर बनाए जाने की तारीख को ना वो
हाउस ऑफ पीपल का मेंबर है और न काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मेंबर है, बट उसकी मैक्सिमम टर्म क्या हो सकती है, जो किसी हाउस का मेंबर नहीं, वो 6 मंथ्स के लिए मैक्सिमम है वो मिनिस्टर रह सकता है। 6 महीने में यदि उस कहीं से इलेक्ट और नॉमिनेट हो जाता है तब तो उसका मिनिस्ट्री का जो ऑफिस है वो कंटिन्यू रह सकता है, अदरवाइज सीजेस टू बी अ मिनिस्टर। क्लॉज 6, द सैलरी एंड अलाउंसेस of the minister shall be such as parliament may from time to time by law determine. As parliament may from time to time by law determine, and until the parliament so determine shall be as specified in the second schedule of this constitution. What would be the salary and allowances for the office of ministers, which shall be determined by the parliament by law, and if parliament not so determine, then what would be the salary and allowances for that transitional period? The House of People, Council of State are not constituted for the Republic of the India. For that transitional period, the salary and allowances of the ministers of the Union shall be specified in the second schedule of the Constitution, and which from time to time may be enhanced by the Parliament by the law. Clause 6 पढ़ेंगे, मंत्रियों के वेतन और भत्ते। मंत्री पद के जो है वो वेतन और भत्ते, सैलरी और अलाउंसेस, वे क्या होंगे, जो संसद विधि द्वारा समय समय पर जो है अवधारित करें। संसद विधि बनाकर जो है, लॉ बनाकर मिनिस्टर्स जो है, संघ के मंत्री है, उनके लिए वेतन और भत्तों को अवधारित कर सकती है, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किया जाए तब तक वो होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। या तो संसद ने अवधारण कर दिया तब तो संसद ने विधि बनाकर अवधारित किया, वो होंगे, और संसद ने जस्ट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान के लागू होने के बाद है, वो कुछ वर्षों तक, जब तक राज्यसभा बनी ही नहीं थी 1952-53 आदि तक जो है, तब तक के लिए उनके वेतन भत्ते वगैरह पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, और जो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, अम्बेडकर आदि जो है वो गृह मंत्री, विधि मंत्री आदि थे, उनको उस पीरियड में 1950, 51, 52 आदि का ट्रांजिशनल पीरियड था, उसमें कौन से वेतन और भत्ते मिले होंगे, क्योंकि संसद ने तो अवधारित किया नहीं था तब तक वो मिले होंगे जो दूसरी अनुसूची में है वो संघ के मंत्रियों के लिए है वो विनिर्दिष्ट किए गए। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये शायद हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था किसी एक आर्टिकल के साथ। हैविंग ओनली नॉमिनल and real executive. There are two types of the executive. One is the symbolic or nominal executive, that is the office of president or governor, and real executive, that is the council of minister of union or council of minister of state. Another feature of the parliamentary form of government, close relationship between the executive and legislature. Next one, executive is responsible to the legislature or house of people or legislative assembly. Uncertainty of the tenure depends upon the confidence in the house of people or legislative assembly, and supremacy of parliament. All these 5 feature of the parliamentary form of government. The Prime Minister is also chairman of the Niti Aayog, National Council, National Development Council, Interstate Council, etc. On the death or resignation of the Prime Minister, the Council of Ministers automatically gets deposed. Collective responsibility of the Council of Ministers means, what is the meaning of this terminology which used in the Article 75 clause 3rd? Means that all the members will have joint responsibility to the Lok Sabha for all their work or action. They will work as a team and be equally responsible. When the Lok Sabha passes a no confidence motion against the Council of Ministers, all the ministers, including those from the Rajya Sabha, have to resign. Additionally, the Council of Ministers can advise the President to dissolve the Lok Sabha on the grounds that the House does not faithfully represent the public opinion and call for the fresh election. The President is not bound to accept the advice of the Council of Ministers who have lost the vote of the confidence in the Lok Sabha.
It is the discretion of the concerned president to call the another party to make a alternative government. संसदीय जो व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसकी क्या विशेषताएं, ये 5 प्रकार की विशेषताएं पॉलिटिकल साइंस जिनका भी सब्जेक्ट रहा है, राजनीतिक विज्ञान बीए आदि में, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ रखी ये सब चीज़ें। 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं होती है संसदीय शासन व्यवस्था में, एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। ये नाम मात्र की कार्यपालिका जो है ये राष्ट्रपति में निहित होती है या स्टेट के अंदर राज्यपाल में निहित होती है, और वास्तविक कार्यपालिका जो है वो किस में निहित होती है, मंत्रिपरिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होता है, उनमें वो निहित होती है। तो 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है संसदीय शासन व्यवस्था में, एक नाम मात्र की औपचारिक कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में क्या होता है या विधायिका में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। ये कैसे, चोली दामन का साथ होता है इनका, क्योंकि जो ये विधायिका है, व्यवस्थापिका है, एमएलए और एमपी, इनमें से ही क्या है, प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर है वो नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए कार्यपालिका का गठन जो है वो राजनीतिक जो कार्यपालिका, न कि आईएएस ऑफिसर एटसेट्रा, वो भी एग्जीक्यूटिव में कवर होते हैं, तो उनका गठन जो है विधायिका में से ही, विधानसभा में से या लोकसभा के जो सदन है उनमें से ही होता है। इसलिए जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका या विधायिका के बीच क्या होता है, घनिष्ठ है वो संबंध होता है, क्लोज रिलेशनशिप होती है उनके बीच में। कार्यपालिका जो है वो व्यवस्था के प्रति या विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। एग्जीक्यूटिव का यहाँ मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्रिपरिषद से, और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, जैसा आपने 75 के क्लॉज 3 में पढ़ा, जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, और लोकसभा क्या है, विधायिका या व्यवस्थापिका का ही एक अंग है या सदन है, इसलिए उनके प्रति वो रेस्पॉन्सिबल है वो होते हैं। कार्यकाल की जो है अनिश्चितता रहती है, सरकार का जो कार्यकाल है वो क्या है, अनसर्टेन होता है। ये जब तक वो लोकसभा के अंदर उनको बहुमत हासिल होता है तब तक ही कंटिन्यू रहता है। जो ही अल्पमत में आ जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, या तो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट है वो बन सकती है, या लोकसभा डिसॉल्व होके और न्यू इलेक्शन या है वो बाई इलेक्शन है वो हो सकते हैं। और एक और बात जो है, संसद की सर्वोच्चता है वो होती है संसदीय शासन व्यवस्था में। ये लास्ट वाली बात हमने अडॉप्ट नहीं की है इंडिया के अंदर, यहाँ सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की है। किसकी है? देयर इज नो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में से कोई किसी के प्रति सुप्रीमेसी नहीं रखता। यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान की सर्वोच्चता है, वो क्या है, वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की आधारभूत संरचना है, एंड इट इज एक्सप्लेन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन केस 1 एंड भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जजमेंट। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रधानमंत्री जो है, मंत्रिपरिषद का तो हेड होता ही होता है, मंत्रिपरिषद का तो वो प्रधान होता ही होता है। इसके अलावा नीति आयोग जो है उसका भी अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय परिषद जो है उसका भी होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका भी अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद है उसका भी अध्यक्ष होता है, बहुत सारे कमीशंस और जो आयोग है उनका भी चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो क्या है, पूरी मंत्रिपरिषद ही क्या हो जाती है, अपदस्थ हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन देने का या प्राइम मिनिस्टर की डेथ का क्या प्रभाव है, पूरी मंत्रिपरिषद अपदस्थ हो जाती है। डेथ के केस में हो सकता है वो फिर बैठक बुलाई जाएगी वापस और नया नेता है वो चुना जाएगा, तो उस केस में जो है नया नेता चुनने के बाद दोबारा ओथ सेरेमनी है वो हो सकती है। बट वंस जो है, क्योंकि उसका हेड कौन है, प्रधानमंत्री है, तो हेड के रेजिग्नेशन या डेथ के साथ ही है वो क्या है, वो सारे जो है वो मिनिस्टर जो है अपदस्थ है वो हो जाते हैं। एक शब्दावली जो हमने मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व पढ़ा 75 के क्लॉज 3 के अंदर, अनुच्छेद 75 के जो है वो खंड 3 में जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी। इस सामूहिक उत्तरदायित्व शब्दावली का अर्थ क्या है, सभी मंत्रियों की उनके साथ उनके सभी कार्यों, सभी मंत्रियों की उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति है वो क्या है, संयुक्त जिम्मेवारी होगी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वे एक दल के रूप में है वो कार्य करते, एक टीम के रूप में है वो कार्य करते और समान रूप से जो है वो उत्तरदायी होंगे। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को
जिसमें राज्यसभा के मंत्री भी शामिल है, क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को इस आधार पर लोकसभा को विघटित करने की सलाह भी दे सकती है कि सदन जो है वो क्या है, जनमत का निष्ठापूर्ण है वो प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है, इसलिए जो है वो क्या है, मध्यावधि चुनाव है वो करवाए जाए लोकसभा को भंग करके। इस तरीके की एडवाइस भी दी जा सकती है। और प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 85 के क्लॉज 2 का सब क्लॉज जो बी है उसकी पावर को एक्सरसाइज करते हुए लोकसभा को क्या कर सकता है, डिसॉल्व भी कर सकता है, विघटित भी कर सकता है। नए चुनाव की जो है वो मांग कर सकती है मंत्रिपरिषद, बट राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद को सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। जिसने लोकसभा में अल्पमत में जो है वो आ गई है, वो मेजोरिटी नहीं है जिस है वो मंत्रिपरिषद की, उसकी एडवाइस को मानने के लिए बाउंड नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भंग न करके क्या कर सकता है, वैकल्पिक सरकार है वो चुनने वाले विकल्प को भी चुन सकता है। दूसरी पार्टी जो है वो मेजोरिटी अपनी साबित कर सकती है और सरकार बना सकती है, उसको भी कॉल किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि वो अल्पमत की मंत्रिपरिषद की सलाह है, उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति है वो बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति का विवेक है, वो चाहे तो जो है वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है और वो चाहे तो वैकल्पिक सरकार बनाने वाले विकल्प को भी चुन सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट shall appoint a person who is qualified to be appointed as a judge of Supreme Court to be Attorney General for India. Who shall appoint the Attorney General of India? Who shall be appointing authority of the Attorney General of India? President. And what is the qualification for appointment as a Attorney General for India? The person who is qualified to be appointed as judge of Supreme Court. A person who is qualified to be appointed as a judge of Supreme Court as per Article 124 clause 3rd of the Constitution. The qualification for the judge of Supreme Court is prescribed or specified under which provision of the Constitution? Clause 3rd of the Article 124 of the Constitution. Any person who fall under that qualification may be appointed as Attorney General for India by the President. Clause 2nd is concerned to the duties of the Attorney General of India. It shall be the duty of the Attorney General to give advice to the Government of India upon the such legal matters and to perform. First of all, to give the advice to the Government of India upon such legal matter. Another duty to perform the such other duties of a legal character as may from time to time be referred or assigned by him by the President, and to discharge the function conferred on him by or under. To discharge the function conferred on him by or under the Constitution or any other law for the time being in force. Duty of the Attorney General for India to give advice in respect of legal matters to which authority? Government of India, and to perform the such other duties of the legal nature or legal character. Also to perform the functions as Attorney General of India which is assigned or conferred under this Constitution itself or any other time being in force law under CPC or other laws. But it is not a duty of the Attorney General for India to give the advice to the President. He is bound to give the advice to the Government of India, not to the President personally. Clause 3rd, that is the right and power of the Attorney General of India. The performance of his duties the Attorney General shall have. Attorney General shall have right of audience in all courts in the territory of India. And what is the meaning of the right of audience in all courts in the territory of India? In matter which the Attorney General of India appears in the court, he shall be heard first. He shall be heard first by the court. उससे जिस मामले में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के महान्यायवादी उपस्थित हुए हैं आर्गुमेंट के लिए, सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सुना जाएगा, भारत के महान्यायवादी को सुना जाएगा। वो उसका जो राइट है या पावर है वो क्या है? वो राइट टू ऑडियंस है, वो जो है उसका सुनवाई का अधिकार है। क्लॉज फोर्थ इज कंसर्न टू द 2 points. One is concerned to the holding the office. He shall hold the office during the pleasure of President, who is the appointing authority of the Attorney General for India, and shall receive the such remuneration as the President may determine.
Attorney General for India shall hold his office on the pleasure of President, and he shall receive the such remuneration which is determined by the President. भारत का महान्यायवादी, द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी है, वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या भारत संघ का प्रथम विधि अधिकारी है वो माना जाता है। ऐसा इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एंड सेकेंड इज सॉलिसिटर। सेकेंड law officer of the government of India, the Solicitor General, that is not expressly provided in the Constitution. The office of Solicitor General is not a constitutional office, it is extra constitutional office. Solicitor General जो है वो संविधान में उसका अभिव्यक्त प्रावधान नहीं है। एडवोकेट जनरल तो स्टेट लेवल का ऑफिसर है, न कि यूनियन लेवल का, है ना। भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान है। बहुत बार हेडिंग और टाइटल से भी प्रश्न आ जाता है। यहाँ से महान्यायवादी से रिलेटेड प्रावधान जो है वो कहाँ दे रखा है, अनुच्छेद 76 में। 4 खंड है इसमें। पहला खंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है और अहर्ता से रिलेटेड है। राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को, ये अर्हता है। क्वालिफिकेशंस क्या है जिसको भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता रखता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता कहां दे रखी है? अनुच्छेद 124 का खंड 3 पढ़ लेना। उस क्लॉज 3 के अंदर जो कुछ भी दे रखा है, सिटीजन ऑफ इंडिया एटसेट्रा, जो है हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में कितनी प्रैक्टिस है वो होनी चाहिए, और किसी एक से अधिक सक्सेसिव हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट कितनी होनी चाहिए, और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट एटसेट्रा, जो कुछ भी दे रखी है वहाँ क्वालिफिकेशंस, उनमें से जो मैंडेटरी है वो, और ऑल्टरनेटिव में से कोई एक जो है जो क्वालिफिकेशन या अर्हता रखता है, उस व्यक्ति को क्या नियुक्त करेगा? भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। और कौन नियुक्त करेगा? नियुक्ति प्राधिकारी कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। और क्वालिफिकेशन क्या होगी? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हित व्यक्ति जो है, क्वालिफाइड जो पर्सन है, उसको भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा। क्लॉज 2 ये कर्तव्य से रिलेटेड है। महान्यायवादी की ड्यूटीज क्या होगी ये क्लॉज 2 में दे रखी है। वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देश करे। सबसे पहला कार्य उसको किसको सलाह देने की है? कानूनी जो मैटर है, विधि संबंधी मामले हैं, विषय, उन पर भारत सरकार को सलाह दे, ये उसका पहला कार्य। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देने की उसकी ड्यूटी है, न कि प्रेसिडेंट को पर्सनली। दूसरी बात जो है, विधिक स्वरूप के, विधिक प्रकृति के जो अन्य कर्तव्य उनका भी है वो पालन करे। और तीसरा जो है वो सौंपे गए, और तीसरा जो है उन कृत्यों का जो इस संविधान में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जो है उसको असाइन किए गए, प्रदान किए गए, उन कर्तव्यों का भी अब वो क्या करें? निर्वहन करें। उन कर्तव्यों का निर्वहन करें जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन या इस संविधान के अधीन या संविधान के द्वारा उसे प्रदान किए गए, उन अन्य कृत्यों का भी निर्वहन करें। ये 3 प्रकार की उसकी ड्यूटी है। लीगल मैटर में भारत सरकार को एडवाइस दे, लीगल नेचर के, लीगल कैरेक्टर के अन्य जो कर्तव्य जो राष्ट्रपति ने उसको असाइन किए या विधि के अंतर्गत है वो दिए गए, उनका निर्वहन करें। इसके अलावा अन्य कर्तव्यों का भी निर्वहन करें जो संविधान में दिए गए या अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन में वो प्रदान किए गए। क्लॉज 3 राइट से रिलेटेड है। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में क्या है? सुनवाई का अधिकार है। और यहां सुनवाई के अधिकार का, ये तो सबको ही है, पार्टीज को भी है, यहां सुनवाई के अधिकार का कुछ स्पेसिफिक मतलब है। ये राइट टू हियरिंग नहीं है, राइट टू ऑडियंस है। क्या है? राइट टू ऑडियंस है। और राइट टू ऑडियंस का जो है मतलब सिंपल सुनवाई से नहीं है, पहले सुने जाने का अधिकार है। क्या है? जब जिस किसी मामले में महान्यायवादी अपीयर हुए हैं, सबसे पहले कोर्ट किनको सुनेगा? महान्यायवादी को सुनेगा। ये उनका क्या है? ये सुनवाई का अधिकार है।
ये कहाँ दे रखा है, बहुत बार प्रीलिम्स के पेपर में पूछ लेते हैं, 76 के क्लॉज 3 में कहाँ दे रखा है, 76 का क्लॉज 3 जो है राइट टू ऑडियंस ऑफ अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया से कंसर्न है। इस तरीके का राइट एडवोकेट जनरल को नहीं है, ये केवल अटॉर्नी जनरल के बारे में एक यूनिक प्रोविजन। 4th जो क्लॉज है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेगा। किसके प्लेजर पे अपनी ऑफिस को होल्ड करेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, और ऐसा पारिश्रमिक भी है वो प्राप्त करेगा जो किसके द्वारा अवधारित किया जाए, राष्ट्रपति के द्वारा। दोनों का कनेक्शन प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे जो है वो ऑफिस को होल्ड भी करता है, और प्रेसिडेंट द्वारा डिटरमाइंड रिम्यूनरेशन प्राप्त करने का हकदार भी संसद विधि द्वारा तय नहीं करेगी। उसका पारिश्रमिक क्या होगा, जो राष्ट्रपति अवधारित करे, जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा, उस रिम्यूनरेशन को भी प्राप्त करने के लिए हकदार होगा। और इट इज अ पॉलिटिकल पोस्ट। ये क्या है, ये एक राजनीतिक पद है। रूलिंग पार्टी जो है अपने नुमाइंदों को जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट करती है। अभी एनडीए या बीजेपी जो है वो रूलिंग पार्टी है, तो उन्होंने अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रखा। क्या नाम है, कोई बता सकता है? अभी कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? पिछली बार तो यही थे शायद, यही है आर वेंकट रमन या आर वेंकट रमणी। रमन ना हो के मेरे ख्याल से रमणी होगा। हाँ, आर वेंकट या वेंकट्टा, आर वेंकट्टा रमणी या आर वेंकट। इंग्लिश वाले वेंकट्टा और हिंदी में वेंकट। आर वेंकट्टा रमणी जो है ये भारत के महान्यायवादी है। हाँ, आर वेंकट रमणी। ओके ओके, तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी आप लोगों के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का आपका मोस्ट रीजनेबल डाउट हो, जो कुछ भी हमने आर्टिकल 74, 75, 76 आदि में पढ़ा, उनको लेके तो बताया। क्लॉज सेकंड या 1A? सेवेंटी 73 का ए और बी में जो दे रखा है, क्लॉज सेकंड में तो ऐसा दे रखा है कि यदि गवर्नर को या अदर अथॉरिटी को कोई एग्जीक्यूटिव पावर, ऐसा है क्या? नहीं, वो कंकरेंट लिस्ट वाला है। जिन विषयों पर राज्य जो है, राज्य विधानमंडल की भी विधि बनाने की शक्ति जो है, उसमें यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर या का एक्सटेंशन नहीं होगा, ऐसा कुछ दे रखा है। ऐसा ही है ना, कुछ लंबा चौड़ा दे रखा है। बट लास्ट लाइन आप देखना कि जिन विषयों पर जो है, जो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हो सकते हैं, जिन पर राज्य विधानमंडल के पास भी पावर है लॉ बनाने की, उन विषयों के संदर्भ में जो है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन का एक्सटेंशन नहीं होगा। इस तरीके की बात दे रखी है क्लॉज 2। तो एक बार आर्टिकल 76 4 क्लॉजेस दे रखे हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आगे मैंने लिख रखा है इसका इंटरप्रिटेशन, ये इस पर बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत। ये तो की पॉइंट्स है, ये रिवीजन के लिए काम का है। ठीक है, इसमें यही है क्लॉज सेकंड के अंदर कि यदि स्टेट के पास या अन्य ऑफिसर या अथॉरिटी के पास पहले से कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले कोई एग्जीक्यूटिव पावर थी, तो उस पावर को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली उनकी समाप्त नहीं होगी पावर, जब तक कि पार्लियामेंट कोई अदरवाइज प्रोविज़न नहीं करती। संसद विधि बनाकर उनकी पावर समाप्त नहीं करती है, तब तक स्टेट की कोई अथॉरिटी या ऑफिसर जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर को कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहेंगे।